So, hello, namaskar, sasrikal, and welcome to everyone. I welcome on behalf of Moksha Canada. I welcome you all in today's meeting, wherein we are going to have a beautiful and knowledgeable session from our Gurudat ji, Dr. Gurudat ji, and he'll be talking to us later on, a bit later. So usually we start with our introductions, but I believe that we all fairly know each other. Yeah. So today we'll straight up start with this session. So about Moksha Canada, we all know Moksha Canada is a very big organization, non-profit organization, which is involved in the welfare projects for seniors and for propagation of the diverse cultures of Canada and immigrants of Canada. So, in view of that, we love to have these meetings where we have people from diverse cultures here. So, in the beginning, we'll start with a little bit of exercises and short prayer, which I will conduct, and then I will introduce Gurudat ji to you, and we'll hand over to Gurudat ji. ठीक है जी, Gurudat ji? Yeah. So I ठीक है। have, okay, Anuji. So I have exactly 18 minutes as per Gurudat ji's instructions to me, with me. So before we proceed on to the prayer or the meditation, short meditation that I'll be conducting for you, so I would request all of you to take off your glasses. We'll do a little bit of exercises first. Okay? Kindly take off your glasses. So we'll start with the eye rotation. We start eye rotation 12 times. All these exercises will be 12 times, most of them. And the eye rotation will be first in the clockwise direction. You can assume a clock in front of you and you can rotate your eye 12 times. And then we have to do it in the anti-clockwise direction 12 times. Okay. And the other exercises will follow, which I'll be conducting side by side. Okay, these are very small exercises. You don't need to be very empty stomach for these exercises. Very small set of exercises, just to rejuvenate ourselves, revitalize ourselves from our, if we have had afternoon naps and all, right? So okay, let's rotate our eyes. So at the count of one, I start. Then at the rotation of one, I'll start the other count. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So this is a very good exercise for eyes, strengthening your eyes muscles. Anti-clockwise 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. You can do this exercise 2 times, 3 times a day. And this has helped me improve my eyesight. So this is what I wanted to share. So we'll do the neck exercise. We'll do up and down. We'll go down first at the back. And please be careful, no jerk and no pain. Don't let yourself be in pain. So do as much as only you can. Okay? So when we come down, it'll be counted as 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, neck sideways. We'll start with the right, to your right.
And right to left will be counted as 1. Okay, turn to your right, please. Now we turn to left. 1, 2, right to left. 3, 4, and we can smile. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay? Very simple, small set of exercises. Now we have to, can you please get up just wherever you are sitting, just near you. तो थोड़ा अपर बॉडी रोटेशन करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे. अपर बॉडी, लोअर बॉडी रोटेशन एंड हैंड एंड फीट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे आज. ठीक है? सो जस्ट पुट योर हैंड्स एट योर चेस्ट लेवल लाइक दिस. ठीक है? ऐसे रखिए. कथक भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो. ठीक है? राइट. ओके. So let's do it. We'll start again with the right, and right to left will be counted as 1. We have to do it 12 times. 1, 2, very gently. 3, 4. Try to look at the back. 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Very good exercise to keep your body joints, okay, moving, your joints moving. Now we come to the lower body. तो हम अपनी कमर की लचक को टेस्ट करते हैं. So we'll do the rotation 12 times in the clockwise direction and 12 times in the anti-clockwise direction. Okay? So let's do it. We start with the clockwise. Start with right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. The other direction. 1, 2. Basic chakra जो होता है हमारा, there are chakras in our body which are invisible energy centers. 6, 7. This gets activated. 11 and 12. So this basic chakra gets activated. Our basic chakra is at the end of the spine here. So it gets activated with this very simple exercise. And this chakra is responsible for our activities. हमारी बॉडी की जो चुस्ती और स्फूर्ति और है ना, उसके लिए ये चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर आपको सुस्ती लग रही है तो उठ के ऐसे 12 बार और ऐसे 12 बार कर लो. देखो चुस्त हो जाओगे फटाफट सारे. जहां भी आपने वॉक के लिए जाना था, आपका दिल नहीं कर रहा सुबह उठ के, तो आप जा सकते हो. ठीक है? So okay, we'll do the shoulders now. Inside, into, out, 12 times. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Out to in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay. This exercise is going to be for elbows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So we'll do the feet. Why I want to do the feet and hands? Because these are the poor parts of the body which we don't pay attention to. Okay? Up, down, feet up and down 12 times, both the feet. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, and 12. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, and 12. You can hold on to something. 12 times anti-clockwise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Fingers.
Your toe fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, the other foot. 1, 2, upside, up, down. 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 11, 12. And anti-clockwise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. ये बेचारों को हम पूछते नहीं है ना सारा दिन, इग्नोर करके रखते हैं अपने हाथों और पैरों को, and we make our shoulders do so much of work for us. We keep sitting, so that is why we do the lower body parts. Okay, exercises और हैं, ये पूरा set complete नहीं है, but क्योंकि अभी हमारे पास time short है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे. Okay, so we'll do a little very quick short meditation. So I suggest you take off your glasses. Meditations में चश्मे नहीं पहनते हैं हम लोग, ग्लासेस का कोई काम नहीं है. टेक ऑफ योर ग्लासेस. यू डोंट हैव टू लुक. आईज बंद रखनी है आपने, मेरी तरफ देखना नहीं है, ठीक है? ओके, एनीवेज, प्लीज ट्राई टू टेक ऑफ योर ग्लासेस. नरेंद्र जी, प्लीज टेक ऑफ योर ग्लासेस. ओके, सो we'll be doing little bit a short forgiveness sadhana. Today I have problem with my eyes. Okay, it's okay. It's okay. No problem. I am unable to open them. Okay, it's okay. Fine. ठीक है जी, fine. Okay. So we will invoke and we'll do forgiveness sadhana. So I suggest you just keep your hands open, your palms open in your laps. And when I say come in blessing position, come in blessing position like this, at the chest level like this. ठीक है? तो ये blessing position है, और ऐसे अपनी आराम से जहाँ बैठे हैं वहां पे के टेबल पे जहाँ भी बैठे हैं वहां पे हाथों को रेस्ट कर दीजिए ओपन. ठीक है? Palms facing upwards. Okay, let us first invoke. Hands at your heart chakra. हाथ जोड़ लीजिए, heart chakra पे touch कीजिए. This is our heart chakra in the center. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to the spiritual teacher, all the spiritual teachers, we hereby humbly invoke to bless us to be able to meditate and get connected to the divine powers by blessing the whole universe, the entire planet Earth, and all the beings on this earth. Thank you. Hands in your laps, palm facing upwards. Just imagine the earth in front of you and think of all the beings living on this earth. All the beings, not only human beings, all the beings living on this earth. So many of them are under distress. So many of them are suffering. So many of them are endangered. Even the environment on the earth is suffering, endangered, is getting spoiled by the human mistakes. We are sitting here to bless this Mother Earth and all the beings on this Mother Earth to live in peace and happiness, in unison with each other. Hands in the blessing position. Imagine the earth like a round ball in front of you. Tongue to the palate. Please put your tongue to the palate. जीभ तालू पे लगा ले. Let's pray and bless this Mother Earth.
May all the sentient beings on this Mother Earth be blessed with divine light, divine power, divine peace, divine illumination, happiness, good health, peace, harmony, understanding, lots and lots of love, lots and lots of harmony with each other. May wherever there is lot of negativity, more negativity be replaced by the positive energies of this group. May the divine light be spread upon the entire earth, in each and every corner of this earth, and all the beings are blessed by this divine light, by this bright, powerful light, bright golden light. May this bright golden light replace the dwellers on the threshold created by the mankind and created by the natural calamities due to human mistakes. May we all learn to live together and respect each other with lots of patience, tolerance, and spirit of forgiveness. May we all forgive those who might have hurt us at any point of time in our lives. May they all be forgiven. Let us all forgive them. And let us all seek forgiveness from those whom we have hurt at any point of life. Blessings be with them all. Let us ask for forgiveness and bless them. Let us forgive ourselves. We are all humans. We make mistakes, but we are supposed to learn lessons from our mistakes, not to repeat them. Let us learn from the mistakes from the others and learn to love everyone and learn to live in peaceful coexistence with each and everyone else on this Mother Earth. May the Mother Earth be blessed with good air, good water, good vegetation, good flora, fauna. May this Mother Earth shine and glow. May we all learn from our mistakes. May we all learn to protect our ecosystems and respect each and every organism's existence on this earth. May all the suffering people in the Afghanistan, in the country of Afghanistan, be blessed with peace and understanding and knowledge. May there be peace everywhere. May everyone be divinely protected and be safe, especially the women and the children. May peace be there everywhere. May all the leaders of this world be blessed with divine knowledge, wisdom, discernment, illumination to develop welfare schemes for everybody on this earth. May all the negativities be disintegrated from wherever they are. May there be a lot of happiness, divine happiness, divine peace,
peace for all. Inhale, stop, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. May peace be on earth. Hands at the heart chakra in Namaste position. The Supreme God, Divine Father, Divine Mother, spiritual teacher, all the spiritual teachers, all the beings on this earth, thank you for blessing us with this group. May our group grow and flourish, and right souls be connected to this group. Thank you. Let's open our eyes with a big, big smile. Thank you. Thank you, everyone. So, okay, I hope we all were able to connect a bit. I just, yeah. Okay. So with this, I would like to introduce our speaker of the day, Gurudat Ji. Dr. Gurudat Ji is an homeopath practitioner from GTA. He was earlier principal Homeopathic College, Abohar, has been practicing homeopathy and teaching homeopathy, and has so many students all over the world who are practicing homeopathy successfully. Gurudat Ji is also a very good singer. We just heard his beautiful song, and a very extremely socially very active person, and very, very helpful to everyone. I welcome you all, Gurudat Ji, after your small introduction. So let us have your session on dementia. Dementia, which is a very common problem and increasing problem amongst South Asians especially. So welcome, Gurudat Ji. Gurudat Ji, unmute yourself, please. Thank you. Thank you. Okay, so do you want to start with slide deck or the video clip? एक मिनट. आज हमारा जो टॉपिक है, यहाँ उससे पहले नीता जी ने मेरे बारे में बोला, मेरी आवाज़ आप तक नहीं आ पाई. वो सब बोलने के लिए मेरे बारे में बहुत बहुत धन्यवाद. बस छोटा सा इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ ठीक कर पाऊँ, लेकिन इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं, और इंसान कहते भी हैं कि गलती का पुतला है. और आपने अभी बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन वगैरह करवाई. लेकिन एक बात कहूँगा कि आप नमक को कितना भी कह लो, कितनी भी प्रे कर लो उसके सामने बैठ के कि तू मीठा हो जा, मीठा हो जा, नमक कभी मीठा नहीं होगा. और पॉलिटिशियंस के लिए कितनी भी मर्जी दुआएं कर लो, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो किसी के नहीं. सो मेरा ये अपना एक एक्सपीरियंस है, या कह लो कि जो देखा है, सुना है, आपने भी देखा किया है कि एनीवे, हम उस पर नहीं कभी चर्चा करेंगे, अभी ना ही करनी चाहिए. हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम वहाँ पे जाके उनको चेंज नहीं कर सकते. हम अपने को चेंज कर सकें, यही बहुत है. मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप किसी को मत बदलने की कोशिश करो, अपने आप को ही बदल लो तो बहुत है. ऐसे ये अगर हम सब ऐसे रखें अपने आप को, तो शायद डेमेंशिया की जो प्रॉब्लम है या याददाश्त जैसे जो भी बीमारियां हैं, वो कभी भी किसी को ना हो. और हर बीमारी के लिए वही चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं कुछ, उसमें से जो कारण जिसे हम बोलते हैं. मैं ज़्यादा हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हमारे सारे जानकार हिंदी वाले ही हैं. बीच बीच में कभी हो सकता है कि टंग स्लिप कर जाएगी इंग्लिश के लिए, तो माफ़ करना उसके लिए भी.
क्योंकि आपने कभी, आप सब यहाँ पे अभी बैठी हुई सब औरतें ही हैं ज्यादातर, एक दो हैं मर्द, लेकिन वो भी कभी कभी अपना जो किचन में हाथ तो चलाते ही होंगे, और मसाले वगैरह भी हम डालते हैं। कभी आप MDH के मसाले या कोई भी और दूसरे मसाले जो हैं, एवरेस्ट के हो गए, गेट्स वगैरह के हो गए, उन मसालों में आप ये देखिए कि इंग्रेडिएंट क्या है। सब, चाहे वो छोले भटूरे, छोले का हो, चाहे आलू बनाने का हो, चाहे दाल का हो, सब में एक ही इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं। हाँ, लेकिन वो कितने किस्में डाले हैं, आधा चम्मच, 1 तोला, 1 माशा, वो अलग से वो सारी चीजें हैं, उसका स्वाद अलग हो जाता है। ऐसे ही बीमारियां भी जो हैं, उनमें भी कारण सारे एक ही हैं, चाहे कुछ भी बीमारियां हो, बस वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसकी रेसिपी में फर्क पड़ जाता है, तो वो चेंज हो जाती है बीमारी। सो उसको कैसे हमने ठीक ठाक रखना है, उस मसाले को एक नॉर्मल बना के रखना है, तो वही एक अपना साधन जो है, मेरी कोशिश अपने जानकारों को या अपने स्टूडेंट्स को, मरीजों को यही देने की होती है कि भाई आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। सो डायमेंशिया भी जो है कोई बीमारी नहीं है, ये इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स ए, इसको बोलता है कि वो एक एक फूल होता है ना, तो इकट्ठा करते हो तो गुलदस्ता हो जाता है, तो उसमें भी तरह तरह के फूल लगे होते हैं। ऐसे ही ये बीमारियां जो होती है, तरह तरह के अलग अलग सिम्टम होते हैं, तरह तरह के अलग कारण होते हैं, वो जब इकट्ठा कर देते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, खासकर कि भाई ये है, या पहचान कह लो इसको, ये, लेकिन वो भी पहचान गलत है उस चीज की भी। सिम्टम जो है, अगर हम उन्हीं को ट्रीट कर लेंगे तो ठीक। बहुत से होता है जी मेरे को डायमेंशिया हो गया, या फलाने हमारे को डायमेंशिया है, उसको क्या दवाई दें। अरे नहीं, उसका कारण दुख में, और ये डायमेंशिया का होने के लिए, अब एक बार मैं अनु जी को कहूंगा कि अब आप वो स्क्वायर वाली स्लाइड चला दें। Should I play slide, Gurudat ji? नहीं, वो आइस वाली जो स्क्विरल की। Okay, ठीक है, let me see. इस वीडियो को जरा बहुत गौर से आप सब देखिएगा कि ये क्या कर रही है और हमारे जीवन के साथ इसका कितना असर है। Can people see the video? वीडियो शुरू, हाँ। Is there any sound? The video has no sound. It has sound. Acha. We can't hear it. Neetaji, mostly it's like a music. It's not saying anything. Okay, I okay. don't know. Maybe there is some, like म्यूजिक many. में नहीं आ रहा है, उसका जो है वॉल्यूम ये क्रॉस किया हुआ है mute ना है। साउंड को आपने। म्यूट है। हाँ। ये पॉज वाले को भी आप ठीक करिए। आपने जो मुझे भेजी थी उसमें पूरे साउंड थी। बस बंद कर दीजिए। Sorry. अनिल जी स्टॉप कर दीजिए। सो आपने ये देखा कि ये जो स्क्विरल है किस तरह से नट लेके उसके ऊपर जद्दोजहद कर रही है, और यही हमारी जिंदगी है। हम भी एक चीज को पकड़ के किस तरह से उसके साथ जद्दोजहद करते हैं, ऊपर से नीचे नीचे। देखो कैसे उसकी आंखें भी, पूरे का पूरा उसने जिंदगी का जो हम करते हैं सब एक्शन दिखाए उसने। ये मुझे अब आपने बोला तो आज ही मुझे ध्यान आया कि एक मूवी थी आइस एज, तो उसमें इस तरह से ये स्क्विरल ये क्या क्या करती है जो हमारी जिंदगी के साथ पूरी तरह से चलता है।
और इसमें दूसरी चीज ये बताने वाली ये थी, अच्छा इसके लिए पहले अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट मोमेंट पे अभी 1-1.5 घंटे पहले ही ये सब कुछ मैंने जैसे आपको बोला तो ये आपने कष्ट किया और एफर्ट आपके बड़े कामयाब रहे कि कितनी मेहनत करती है ये उस नट को लेके, और वो जगह जगह जाके वो अपने नट को छुपाती है जंगल में, और उसके बाद में वो एक्चुअली भूल जाती है कि मैंने कहाँ क्या रखा। वो ढूंढती रहती है, फिर और लेती है, कहीं रखती है, सारा दिन घूमती रहती है, मजे करती है, सबसे एंजॉय करती रहती है। वही हमारी लाइफ में भी है। और मैं ये कहूंगा दूसरी बात कि वो उसका जो ये भूलना जो है वो प्रकृति के लिए या हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि वो उस चीजों को रख के भूल जाती है और बीज जो रहते हैं वहां से फिर पेड़ अंकुर होता है, पेड़ बनते हैं। जंगल बनने का सबसे बड़ा कारण जो है वो स्क्विरल है, जिसके पीछे कि वो नीचे दबा देती है, क्योंकि जो ऊपर भी गिरते हैं ठीक है हो जाते हैं कभी कभी बीज जो है, लेकिन बीज को एक एनवायरनमेंट चाहिए, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, और जमीन के अंदर हो तो जड़ पकड़ के वो उगता है। देखिए जिस तरह से वो अपना सब कुछ कर आके इतनी मेहनत करके भूल जाती है कहाँ कहाँ क्या रखा, तो ऐसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में ये अगर हम भूलने की कोशिश करें तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको किसी ने क्या दुख वाली बात कही, कैसे कही, भूल जाओ। तो अगर हम वो सारी चीजें भूल जाएं तो ये जो है डायमेंशिया जो है ये हमें कभी भी आके नहीं सताएगा। सबसे बड़ी बात ये आपको, डायमेंशिया है क्या? ये इंग्लिश जो वर्ड है, देखिए शिया का मतलब ये जो है ग्रीक वर्ड है, डायमेंशन से ये लिया गया है डायमेंशिया। डायमेंशन जी जो है वो जब हम वो समझते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी है। हम ये सारी चीजें भूलने जब लग पड़ते हैं। शिया का मतलब है खत्म हो जाना। डायमेंशन को समझने की ताकत खत्म हो जाने का नाम है डायमेंशिया। इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई का नहीं है कि भाई जो लेंथ वाइज है, अपने जीवन की बहुत सी जो चीजें आगे पीछे की हम बात करते हैं, वो बात कैसे करनी है, आपके बोलने की, आपकी याददाश्त की शक्ति, वो सारी की सारी जो आपकी धीरे धीरे चली जाती है। बिल्कुल धीरे धीरे। ये जो डायमेंशिया है एकदम से नहीं होता। खासकर यो है ये 60s के बाद ज्यादातर लोगों को शुरू होता है, जो कि स्टडीज हैं, और 5 to 8% लोग जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 60s में। उसके बाद में धीरे धीरे कहते हैं कि 5% से बढ़ती आती है, 80 में जाके बहुत से लोग काफी चीजें भूलने लग पड़ते हैं। तो कुछ तो भूलना भी अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको कहा किसी की गलत बातों को भूल जाओ, अच्छी बातों को याद रखो, तो वो भी चला जाएगा। सो अभी आप प्लीज स्लाइड शुरू करिएगा प्लीज। सो इस पे हमने बात करी है कि डिमेंशिया क्या चीज है। और ये स्लाइड बनाने में मेरी जो मदद की है मेरे पोते ने की है, जो कि अभी 7th में गया है। मैं तो बोलता गया और उसने ये स्लाइड्स बनाई, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू हिम आल्सो। और अनु जी को मैंने ये भेजा और उन्होंने इसको पॉलिश किया, ताकि वो कहते हैं ना कि कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, जब तक उसको अच्छी तरह से परोसा नहीं जाएगा, उसकी गार्निशिंग नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। और होटल में हम गार्निशिंग के तो पैसे देते हैं, अभी आप यहाँ पे अपनी गार्निशिंग के लिए तो, हालांकि सब आप ये जानते हैं कि सारी ये चीजें क्या हैं। देखिए आपने थिंकिंग में आपका जो है जो डायमेंशन है आपकी थिंकिंग की, वो बदल जाती है, सोच नहीं पाते। और रिमेम्बरिंग कब क्या बात हुई थी, अच्छा उसने कहा था, किसने कहा था। मैं जो है एक पेशेंट वाली भाषा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहा हूँ कि डायमेंशिया आपको कैसे समझना, क्या करना है। मैं एक आम कह लो कि भाई सिंपल वे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सब समझ सकें, या जो बाद में अगर आप अपना जो भी कोई है जो मेडिकल्स के अलग है सब समझ सकें। और नॉर्मल फंक्शन ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटी, वो सुबह उठे, अच्छा क्या करना था, अच्छा आपने ब्रश कर लिया, ब्रश करके आगे बैठ गए, फिर आप ओहो ब्रश को मैंने सही जगह रखा नहीं है शायद, फिर आप देखने जा रहे हो कि मैंने वो सही रखा है कि नहीं रखा।
ये जो सुबह की छोटी, मेरा टॉवल कहाँ गया, ऐसी जो चीजें हैं, जब आप में ये आने लगती हैं तो आपको बड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। घर से निकलते वक्त बार बार ताला देखना बंद कर दिया कि नहीं कर दिया, वो मैंने चाबी वहां रखी कि नहीं। सो ये जो है वो आपको फिर तंग क्यों करती है, क्योंकि आपने अपने आप को उस गिलहरी की तरह अपने जीवन में इतना खींचातानी की हुई है, आपने ओवर एक्टिविटी की है, आपकी माइंड की भी की है, खाने पीने में भी की है, और इतना कुछ बोझ लेके चलते हो, और ऐसी अवस्था में आ गए अब आपको बहुत सी चीजें जो है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है आपकी कि मुझे बहुत कुछ याद रखना है, उसको ये कहना है, उसको ये कहना है, जिसको बोलते हैं ना कि ओवर बर्निंग ऑफ योर माइंड है आपकी। इतना आपने अपने आप को स्ट्रेस में डाल रखा हुआ है कि वो आएगा, उसने वो किया, फिर कुछ तुम वहां गए थे, आ गए हो, उसने क्या कहा, सब चीजें जानने की हमारी जो है ना क्यूरियोसिटी, वो धीरे धीरे ऐसे कर देती है कि हमारी जो वही कहना रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग नहीं हमारे अंदर रहती, हम किसी बात को भी कहने की कोशिश करते रहते हैं बार बार। तो ये जब चीजें ऐसी आए तो समझो कि आपकी जो याददाश्त है वो कम होने लग पड़ी है, और ये ज्यादा जब और ज्यादा हो जाएगी तो कहीं एल्जाइमर्स डिजीज जो है उसमें ना कन्वर्ट हो जाए। उसे बदलने के लिए आपको इसी वक्त से कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, पर्सनालिटी ठीक ठाक रहो। अभी क्या बहुत से लोगों को क्या होता है कि हम अभी रिटायर हो गए हैं, अभी क्या करना है, क्या शेव करनी है, क्या दाढ़ी बनानी है, मूछें जैसी भी है, कपड़ा पहन लिया नहीं पहना है। अरे जैसे कई कहते हैं इस उम्र में भी आप जोक सुना रहे हो या गाना गा रहे, कई लोग कह भी देते हैं भाई ये कोई उम्र है गाने गाने की, ये कोई उम्र है जोक मारने की, ये उम्र है कोई डांस करे की? नहीं, जब तक जीवन है आप करते रहो, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। क्या है ये चलना? कोई ये थोड़ी है कि पैर चलाते रहो, जमीन पे आप चल रहे हो, सड़क पे, सड़क नापना इज नॉट ए जीवन। जीवन है एंजॉय करना, हर चीज को एंजॉय करो जैसे एक बच्चा एंजॉय करता है। जब आप अपने आप को बच्चा रखोगे तो बचे रहोगे हर चीज से। बच्चे बचे रहते हैं ना, एक बार किसी से छोटा बहुत झगड़ा हुआ कि टूट फूट हुई, वो 1 मिनट से 2 मिनट हुआ, उसके बाद में फिर वहीं के वहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो था थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन की कि भाई ये क्या है। जैसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं करते हैं, फिर भी अपने मीता जी हमारी सर इंट्रोडक्शन देती है कि ये क्या है। सो डायमेंशिया आपको पता था, लेकिन मैंने भी उसकी एक इंट्रोडक्शन दी कि जो अच्छा। अब क्या होता है धीरे धीरे जैसे ये डिफिकल्ट जो स्पीच में आपके फर्क पड़ जाता है या राइटिंग में आपके फर्क पड़ता है कि कोई वर्ड अच्छा ये लगाना चाहिए, कैसे लगाना, कैसे लगा था, वो वर्ड सोचने में भी दिक्कत होती है, या आप नाम अपने दोस्तों के भूल जाते हो, अपने स्पाउस के भूल जाते हो। एक है वो जो की तरह ही है कि एक साहब थे, वो अपने वाइफ को कभी डार्लिंग, कभी माय स्वीट हार्ट ऐसे करके बुलाते थे। तो एक दिन एक ने पूछ लिया कि साहब आप अभी कितने साल आपकी शादी के हो गए, आप काफी एज लग रहे हैं, 80 के करीब होंगे, तो आप हमेशा वाइफ को डार्लिंग वार्लिंग बहुत प्यार करते हैं, ये कहते हैं, कभी आपने उसका नाम नहीं पुकारा? कहता है यार चुप रह, क्यों नाम मत अब उसका पूछ ले। कहते कि मुझे कहता 40 साल हो गए उसका नाम भूले हुए, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उसको पूछूं कि तेरा नाम क्या है, तो इसलिए मैं उसको डार्लिंग या प्यार प्यार भरी बातों से ही बुलाता हूँ। सो ये भूल जाना, खैर ये तो एक जो था, मतलब इट इज ए वेरी सीरियस थिंग कि आप अपने बिल्कुल करीबी दोस्तों के नाम भूल जाओ। कभी किसी को दूर थे जानते थे उसका नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, आपके स्कूल में क्लास फेलो भी होते गए, उनका नाम अगर भूल गए हो तो दैट इज ऑल। फिर आप क्या कहता है कि भाई बहुत से, मैंने ये किताबों में ही पढ़ा था अपनी होम्योपैथी मेडिसिन में, फॉरगेट द नेम ऑफ द स्ट्रीट, या जहां रहता है वो घर भूल जाना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। वो कहते हैं फिर थोड़ी देर बाद कभी याद आ गया। बहुत से यहाँ ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी उन्होंने कई बार आके कंप्लेंट की, जैसे भी कभी डॉक्टर साहब हमेशा वहां जाते आते हैं, तो लेकिन कभी कभी मैं उधर से भूल जाता हूँ कि राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, या मैं कौन सी गली में खड़ा हूँ, फिर नाम वहां पढ़ के फिर होते इतनी बार जाके। तो ये जो चीजें हैं ये सब इसीलिए क्योंकि आपने अपने माइंड को ओवर स्ट्रेस रखा हुआ है।
आप प्री ऑक्युपाइड माइंड को मत करिए। ये फ्रीक्वेंट फोन कॉल्स का आज की डेट में तो भूल जाना वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं रखने, क्योंकि डायल ही नहीं करते हम। ये जब डायल नहीं करते तो इसलिए किसी का नंबर याद नहीं रहता। पहले हम डायल करते थे, तब वो भूलते हैं, तो देन इट वाज वेरी। लेकिन दूसरी बात यह कि किसी का फोन अच्छा किया है या किसी का आना था, उसका फोन आ भी चुका है, आपने सुना है, फिर या उसका फोन आना था आया नहीं, या आप बार बार आपने दोबारा फोन किया, वही बात, या घर पे बैठे भी एक ही बात को रिपीट करते रहना। यहाँ तक क्या है, जैसे फॉरगेटिंग में तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना खा के भूल जाते हैं कि मैंने खाना खाया था, कहते मेरे को खाना नहीं दिया। बाकियों को दे रहे हो खाना, घर में कई बार उससे कलेश भी हो जाता है कि बापू जी अभी तो तेरे को खाना दे, कहता मेरे को तुझे खाना, तू अपने न्याणे नु खाना खवाई जानी है, मैंने तो देता ही नहीं। देन मिसिंग अपॉइंटमेंट, ये तो वही प्री ऑक्युपाइड माइंड जो रहता है, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट को भूल जाता है। मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ, कई बार मेरी वाइफ कहती है अरे आप पेशेंट को आपने बुलाया था, उसके ठीक है। वही पुअर हिस्टोरियन वेगू सीम्स ऑफ, मतलब कि आपको बहुत सी हिस्ट्री की जो चीजें हैं, आपकी जिंदगी की हिस्ट्री भी हो सकती है उसमें, उसकी भी आपसी बहुत सी बार चीजें जो भूल जाना है, वो बहुत हल्का सा याद रहे। कईयों कहता है बचपन की चीजें याद नहीं रहती, और कई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जिन्होंने को अपने फर्स्ट स्कूल डे से अब सारा कुछ याद है कि कौन कौन थे। वो खैर इंटरेस्ट की बात होती है। और ये अच्छा ऐसे जो है अपनी मेडिसिन खाना भी भूल जाना, मेडिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं। खैर मेडिसिन, मेरे हिसाब से मेडिसिन खाना दो तरह के मरीज जो हैं या इंसान भूलते हैं। एक तो वो जिसे वो तकलीफ खत्म हो जाती है, जैसे कि आपके कोई पेन हो रही है या एक्सीडेंट हुआ या पेन है, तो आपने गोली, आपको डॉक्टर ने बोला कि 4-4 घंटे बाद गोली खाओ, तो आप खा रहे हो 4-4 घंटे बाद, उसके बाद में आप पेन खत्म होगी तो आपने जो, अगर उन्होंने 4 दिन के लिए बोला था तो आप 2 दिन के बाद में नहीं ले रहे हो, तो वो तो अच्छी बात है, वो भूल जाना, क्योंकि आपकी तकलीफ नहीं गई, तकलीफ चली गई है, तकलीफ रही नहीं। हाँ, लेकिन जब आपकी तकलीफ में आप दवाई खाना भूलते हो, वो एक कंसर्न वाली बात हो जाती है कि वो मैं क्यों भूल गया, क्यों नहीं। खासकर जो है ब्लड प्रेशर जिनको है या डायबिटीज वगैरह है, उनको तो अपनी मेडिसिन बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम से शूट अप होती है, इधर उधर हो जाता है उसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो स्लाइड पे आप पढ़ रहे हो, ये मेडिकल टर्म्स हैं, अलग अलग तरह की, जैसे ये लॉस ऑफ नो नॉलेज ऑफ इलनेस, पता नहीं कि कौन सी बीमारी है वो बोला जाता है, लॉस ऑफ लैंग्वेज है, लॉस ऑफ रिकॉग्निशन एज नशिया। सो ये तो उनके लिए खासकर, जब मैं उसको बता रहा था तो उसने वो डाल दिया। प्लीज नेक्स्ट करिए आप, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ, ये है फैक्टर कि किस किस को ज्यादा रिस्क रहता है डायमेंशिया होने का, क्योंकि जो डायमेंशिया है टोटली आपके नर्वस सिस्टम या ब्रेन से ताल्लुक रखता है, डायरेक्टली इट इज अफेक्टेड बाय योर ब्रेन नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम आपका कैसे बिगड़ता है, वो नर्वस सिस्टम बिगड़ने के लिए एक तो बहुत आम है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी मतलब, हालांकि हमारा जो ये स्कल है ना, ये इतनी स्ट्रांग है कि ये जल्दी टूटती नहीं है, ये फूटती नहीं है। बाकी हमारी जो हड्डियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूत हमारे सिर की हड्डी। फिर भी अगर आप किसी जोर से इंपैक्ट से गिरते हो या आपको कोई चोट लगी है, खासकर बचपन में जो बच्चे गिरते हैं, कभी बिस्तर से गिर जाते हैं, या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है या साइकिल चलाने, या खासकर यहाँ पे ये जो खासकर कार में जब आपको एक्सीडेंट होता है, जब आपकी कार भी स्पीड में है और दूसरी कार भी आके स्पीड में टकराती है, तो उस वक्त जो ब्रेन इंजरी होती है उसमें अगर
ब्लीडिंग वगैरह हो गया तो बहुत नुकसान है। लेकिन जब आप खुद खड़े हैं आपकी कार में और पीछे से आके कोई कार आपको ठोकती है, तो उस इंजरी का इफेक्ट जो है आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसे कंकशन ऑफ ब्रेन जो होता है। वो अगर एक बार कंकशन हो गई, हिल गया दिमाग, वो बाकी सब ठीक है, तो वो हम क्या उसको हम भूल ही जाते हैं कि भाई, क्योंकि आपको ब्लीडिंग हुई नहीं। और वो जो कंकशन है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, प्रोग्रेसिवली, वो स्लोली स्लोली। तो कई सालों के बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद तक उसका इफेक्ट जो आके आपके दिमाग को हो सकता है, जिससे कि आपकी याददाश्त वगैरह जो है वो इम्पेयर्ड हो जाए, आपकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाए। और यहां तक भी हो सकता है कि आपको पैरालिसिस भी उससे हो सकता है। धीरे धीरे हुआ पैरालिसिस, पहले पता ही नहीं चलता, कोई अटैक नहीं हुआ, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, लेकिन वो जो ओल्ड इंजरी थी, जो इससे आपका ब्रेन हिल चुका हुआ था, वो करते करते कई बार उसमें थोड़ा बहुत जो है कभी ब्लड क्लॉट अंदर रह गया था, वो पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एज के साथ साथ जैसे हमारे हर बाकी चीजें कोमल हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, तो ब्रेन में भी जो कैपिलरीज हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो उसमें से वो क्लॉट निकल के बाहर जाता है, तो ब्रेन को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जिससे कि आपको जो है पैरालिसिस या जैसे स्ट्रोक बोलते हैं यहाँ पे जनरली, तो वो होने का डर बना रहता है। और दूसरा रिस्क है जिनकी माइल्ड ओबेसिटी है, ओबेसिटी में जिनको थोड़ा सा ज्यादा वजन क्या रहता है। अब वजन जिनका थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो वो कई बार, जैसे आजकल एक रिवाज चला हुआ है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, ठीक है, बाकी चीजें, उसके लिए आप अपनी जो है डाइट में इस तरह की कटौती करिए कि जिससे आपका फैट बढ़ रहा है वो चीजें ना ली जाए, ना कि आप जनरल अपनी रोटी बंद कर दो, रोटी कम कर दी तो आपको जो पूरे न्यूट्रिशन वगैरह नहीं जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, आप चेंज करो उस डाइट में। सो ओबेसिटी जो है वो इसका एक कारण तब इस वजह से बनती है। माइल्ड हाइपरटेंशन जो है, माइल्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, कभी आपने गोली खाई कभी नहीं खाई, तो वो अगेन जो है सर्कुलेशन जो ब्लड का है आपके ब्रेन को जाने वाला है, उसमें इंपेयरमेंट होती है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे हो गया, ऐसे ऐसे हो, तब वो सक्शन है उसमें। अब ये डायबिटीज वालों का भी यही हाल, आपके अगर डायबिटीज ज्यादा है तो वो आप कम है तो आप तभी बेहोश होगे, ज्यादा है तो भी आप बेहोश होगे। इसका भी इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर में अभी बाद में बात करते हैं, और ये क्यों होती हैं, किस तरह से होती हैं। ये तंबाकू स्मोकिंग, बहुत से लोग हैं, नॉट ओनली तंबाकू स्मोकिंग जो है, इवन कॉफी वगैरह हो गई, अल्कोहल है, ये भांग है जिसे यहाँ पे मरवाना बोलते हैं। सो ये सारी जो चीजें ये आपके जो माइंड को स्टिमुलेट करती हैं या आपको डिप्रेस करती हैं, तो ये भी आपकी याददाश्त को दूर करते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है आपको एक दूसरे अलग लोक में ले जाती हैं। जब आप अलग लोक में चले जाते हो, वो आपकी थिंकिंग अलग चेंज हो जाती है। तो जो नॉर्मल थिंकिंग जो जिसे बोलते हैं धरातल पे रहना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड में, आप रियल वर्ल्ड में नहीं रहते, आप रियल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो। तो वो टेम्परेरी जब जाते हो तो वो जो फेस है, वो गैप बीच में जो आया, तो वो आपके पुरानी जो याददाश्त है उसे इम्पेयर कर देता है, उसे हटा देता है। और स्लीप डिस्टर्बेंस, हाँ, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन वगैरह, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस में रहे, कुछ करना नहीं है, दिमाग में से बोझ, तो वो आपको जो है, और क्योंकि डिप्रेशन क्या है हिंदी में या पंजाबी में, चिंता, चिंता चिता समान है। सो कभी भी आपको किसी भी वजह से डिप्रेशन में आप जा रहे हो, जॉब नहीं है, लॉस हो गया, बेटा बेटी कहना नहीं मान रहे, या उनकी शादी थी, ये वो आजकल, मतलब जो भी आज के मॉडर्न लाइफ में जो आपको डिप्रेशन में लेके जाती हैं, सो उस चिंता में मत पड़िए, चिंतन करिए, ताकि आप उस जो आपकी चिंता है उससे आप निकलिए। हर चीज का इलाज है। दुनिया में कहते हैं कितने भी सवाल बने हुए हों, लेकिन उसका जवाब पहले बना है, सवाल बाद में आया है। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोना भी बहुत जरूरी चीज है। हालांकि इसके बाद में हमारा एक सेशन और है जिसमें स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर है, लेकिन वह इसमें थोड़ा सा जो नींद है ना हमारी, ये बहुत जरूरी है, सही तरह से सोना। क्योंकि नींद वो चीज है जिसे आज की लैंग्वेज में हाउस कीपिंग बोलते हैं। मोस्टली जो है हाउस कीपिंग की जो जॉब है बड़े बड़े होटलों में होती है, हाउस कीपर बोलते हैं उसे, या हाउस कीपिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या है?
कि सब चीज़ों को व्यवस्था में लेके आना। चद्दरें खराब ठीक तरह से नहीं रखी हुई, टॉवल ठीक नहीं है, धुले नहीं है, वो जो होटल में तो इसलिए इसलिए ऐसे ही अपने घर में भी हम करते हैं, लेकिन वो जो घर में जो आपकी बहन, बीवी, बेटी काम करती है, घर को ठीक-ठाक रखती है, तो वो हाउसकीपिंग है। अगर उस हाउसकीपिंग में आप सब लोग एक-दूसरे का साथ दे दें तो बहुत अच्छी बात है। खैर उसके बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले मुझे ही आएगा कि आप खुद क्यों नहीं करते हो? एनीवे सोने से आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसे सही तरह से लाया जाता है। नींद का आना बहुत जरूरी है। कितने घंटे लेनी बाद में बताएं। ये आगे है जिसे हाइपोलिपिडीमिया बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये भी आपको आपके डायमेंशिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ठीक-ठाक रखने के लिए। इसलिए साइड में यह है, ये ट्राइग्लिसरीड कोलेस्टेरॉल इनका भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ती हैं, जब आपका खान-पान नहीं ठीक है और आपका जो लिवर है वो इसको बढ़ाता है। हालाँकि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। हमारा जो माइंड है ये इसको अगर किसी ने बचा के रखा है हुआ है, तो वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है, जिसे फैटी टिश्यूज़ बोलते हैं। दैट इज़ ए फॉलिक अपना फैटी एसिड, लेकिन उसमें से एसिड निकल जाते हैं तो वो जमाव बन जाता है उसका। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिनको ये तकलीफें हैं वो ध्यान रखें, खासकर जिसको चोट आए तो चोट का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारी जो चीजें हैं सब मिल मिला के फिर जो है ये अल्जाइमर जो बीमारी जिसका कि फिर कोई इलाज नहीं हो पाता उस पे पहुंच जाती है। हालांकि ये जो है जब ये इसको अनरिकवरेबल डिजीज में है, देयर इज हार्डली एनी रिकवरी फ्रॉम इट। लेकिन इससे अगर हम पहले सारी चीजें शुरू करेंगे तो ये सारा इस पॉइंट तक हम पहुंच ही नहीं पाए। देखिए ये आपको जो देखा मैंने ब्रेन के, अगर आप ये देख रहे हैं नॉर्मल ब्रेन है, इसके ये जो कॉर्टेक्स है सबसे पहले जो है बाहर जो है ये सेल्स की, इसमें से सारी तकलीफें शुरू होती हैं। ये व्हाइट मैटर अंदर रहता है जहां पर कि आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो सारी चीजों को सही तरह से अलग अलग कोनों में रखता है। और जिंदगी में हम अपना जो दिमाग है इसका हार्डली 10% भी यूज नहीं होता। आम जो इंसान है वो 5 to 8% तक यूज करता है। जिसका 10% से ऊपर होता है वो फिर अलग ही तरह के लोग होते हैं, जो कह लो कि भाई जिन्होंने ज़िंदगी में डिस्कवरीज़ की हैं, जिन्होंने दुनिया को नया रास्ता दिया, तो वो उस पे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो लास्ट स्टेज है डिमेंशिया की, अल्ज़ाइमर की, क्यों है? क्योंकि उसमें से सारे जो टिश्यू हैं आपके ब्रेन के वो डिजेनरेट हो जाते हैं। उसमें कई तरह की ये कैसे ये कह लो कि उसमें फ्यूज़ लगे, या आज की भाषा में जिसे हम बोलते हैं वायरस, वो वायरस जो है वो बार-बार खाता रहता है, जिससे कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता धीरे-धीरे। उस इंसान को तो वो सिर्फ़ एक वेजिटेटिव लाइफ़ जी रहा है और अपनी लाइफ़ तो उसको खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है, इससे पहले मैं आपको बताऊँ बात कि आप अपने को किस तरह से सही तरह से रखना है। आप हर बीमारी का इलाज जो है वो आपके खान-पीन के ऊपर है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी डाइट को सही रखिए, अपने डायटीशियंस को कंसल्ट करें, अगर आपको नहीं खुद समझ। लेकिन तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अपनी बॉडी की अपनी लिसन करिए। आपकी बॉडी क्या कहती है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। किसी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो डाइट्स आती हैं, उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। क्या पंजाबी में कहावत है, किसी नू माँ स्वादी ते किसी नू माँ बादी। माँ से अगर बात आई है, जैसे कि उड़द की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल
इतनी अच्छी इसमें प्रोटीन है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और आपके ब्रेन को एकदम तंदुरुस्त रखती है। अभी इस यहाँ तक ये मैंने जो आपसे बात की, इसमें से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही इज वेलकम टू गो अहेड फ्रॉम दैट। कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, जी जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जरूरी है कि डिमेंशिया अल्जाइमर की को इट शुड एंड इन अल्जाइमर्स ऑलवेज? क्या डिमेंशिया अल्जाइमर बनता ही है हमेशा? अगर डिमेंशिया का प्रॉपर इलाज ना हो तो बढ़ता जाए तो ये यहाँ पर पहुंच जाए। कुछ तो लोगों को डायरेक्टली भी अल्जाइमर होता है, जिनको जैसे पार्किंसन डिजीज वगैरह के है, और या जिनको वही बताया कि किस तरह से इसको हम शुरुआत कैसे इसकी रोक सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब टेस्ट करवाते हो तो ब्लड टेस्ट में एक वर्ड आता है या होता है अमाइलेज। वो जो अमाइलेज है, डॉक्टर जनरली कहते हैं नहीं इसकी कोई ऐसी बात है, क्योंकि वो उस वक्त आप सिम्टम लेस हो। ये अमाइलेज किन किन का बढ़ता है? जिनका हाइपरटेंशन है, जिनकी डायबिटीज है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, खासकर जो अमाइलेज है ये आपके इंटरनल ऑर्गन जो हैं, ये उनमें जो कोई भी बीमारी आती है तो ये बढ़ता है। और ये इसका जो फॉर्मेशन है वो आपकी जो बोन मैरो है वहां पर होती है, क्योंकि बोन मैरो से ही सारा जो ब्लड की बारी जो जनरेशन है, ब्लड कहाँ से बनता है, क्या होता है, वो आपकी बोन मैरो ही मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो बीज है आपके ब्लड का। तो आपको जब ये एमाइलेज हो आप देखो तो उसको वहां से ही चेकअप उसका हो जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है लीवर में, मुझे कौन कौन से जो है चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो डेमेंशिया जो है ये बहुत, अगर आप समझ गए पहले पर जितने, तो मेडिसिन लेके या अपने आप को सही तरह से चीजें ऑब्जर्व करके अपने कंसल्टेंट से बात करके आप उस स्टेज को रिवर्सिबल कर सकते हो। लेकिन 99% जो है जो नहीं ध्यान दिया जाता तो वो दैट विल एंड इनटू अल्जाइमर। तो मैं ये फील करती हूँ कि डिमेंशिया काफी लंबा भी चलता है शायद। बहुत लंबा चलता है, हम्म अगर और इसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो, जैसे कि वो जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए, अगर वो नहीं है तो वो अगर है तो वो जल्दी जल्दी, अगर आपने अपनी डायबिटीज का सही तरह से कंट्रोल नहीं किया तो आप बहुत जल्दी जो है वो ए में चले जाएंगे, डी से सीधी ए में। इसीलिए उसमें जो है अल्जाइमर जेड है, ए से शुरू होके जेड तक पहुंच गए सीधे फटाफट। हाँ, तो अभी और कोई है किसी का सवाल? यस सर, मुझे ये आपसे पूछना था। अब अभी जैसे आपने जो कॉजेज बताए उसमें से मेरे तो 6-7 कॉजेज हैं। 3 टाइम्स मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है एंड एवरी टाइम आई वाज हिट फ्रॉम बिहाइंड। और अब मुझे डायबिटीज भी है, थोड़ा डिप्रेशन का भी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी है, तो लाइक मोस्ट ऑफ दीज कॉजेज हैं। जी तो मुझे क्या प्रिकॉशंस, अच्छा जैसे फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, हम डॉक्टर्स को जाके कहते हैं तो वो कहते हैं ये तो नॉर्मल है, थोड़ा एज के साथ आप भूल ही जाते हो। तो एट व्हाट स्टेज वी शुड रियलाइज कि नहीं अब ये रियली अलार्मिंग है? देखिए, अलार्मिंग तो जैसे आपने अभी बात करी है, अलार्मिंग ही है। बार बार किसी चीज को भूलने लग पड़ना, वेरी अलार्मिंग। तो डॉक्टर तो इसे सीरियसली लेते ही नहीं। जब भी मैं जाके बोलती हूँ, मेरी तो हिस्ट्री भी है, मेरी मदर को डायबिटीज भी थी, मेरी मदर को पार्किंसंस डिजीज भी थी, तो मैं डॉक्टर्स को जाके बार बार बोलते भी हूँ, फैमिली डॉक्टर को, कि भाई मेरी तो हिस्ट्री भी है और अभी मैं जैसे चीजें भूलती हूँ और मेरे ये रीजंस भी हैं।
वो कहते हैं कि नहीं ये इतना तो नॉर्मल ही होता है, एज के साथ साथ आदमी थोड़ा बहुत तो भूलता ही है, नथिंग सीरियस। सो दे डोंट इवन टेक एनीथिंग सीरियस। अब वो कुछ नहीं करते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा टेस्ट हो, कोई और ऐसी चीज हो जिससे कि हमें मतलब हम प्री एक्टिव होके प्रोएक्टिव हो जाएं और अपना थोड़ा फिगर आउट कर सकें इसको। जी, उसके लिए फिर यही है कि एक्चुअली क्या है कि हर देश में मेडिकल का जो है एक सिस्टम है। यहाँ जो आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, वो बंधे हुए हैं। उनका एक प्रोटोकॉल है कि इसके आगे नहीं जा सकते वो, और मोस्टली वो इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करते जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपने ज़्यादा उनको अगर कहोगे, वैसे कहना चाहिए आपको इस केस में कि आप मुझे किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजिए। क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत चीज़ों को प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाते और कर भी नहीं सकते। और सेकंडली ये है कि एलोपैथिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि बहुत सी जो दवाइयाँ हैं वो भी डायमेंशिया को बहुत ज़्यादा अग्रसर करती हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट को देखना चाहिए हमें। जी, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिक हो गया, जैसी-जैसी है तकलीफ़ें हैं। क्योंकि वही आपको बोला ना कि वो अब चीज़ों को मैं तो ये कहता हूँ कई बार, जैसे ये अमाइलेज वगैरह की लगा लीजिए आप, कि ये हमारे अपने सिस्टम में जो मेडिकल है, इसको क्यों उस स्टेज पे क्यों नहीं उसको ठीक आप करने की कोशिश करते? क्यों वो ये चाहते हो कि वो उनका यही है कि आप एट द एंड ऑफ योर लाइफ ग्रोसरी आप कम खाएँ, आप फार्मेसी में ज़्यादा जाएँ। बस वही है। और ऐसी स्टेज में आता है कि आपकी जितनी भी पेंशन है, जो कुछ भी आपका बचा है, वो सारा का सारा जो है, वो जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनको मिल जाए। बड़ी हार्शली बात कर रहा हूँ मैं, और किसी अपने ही प्रोफेशन के अगेंस्ट बोलना पड़ जाता है, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी नहीं लगें, जिस चीज़ का आपको पता है कि भई ये गलत, आप किसी आदमी को ये बोलो कि हाँ, ये जंगल में से चला जा, बिल्कुल रास्ता ठीक है, और पता है आपको उस वहाँ पे शेर भी है या वहाँ पर डाकू रहते हैं, तो वो आप अगर उस भेजते हो तो गलत बात है वो। वही तो, अब जैसे मेरे को विटामिन डी खुद को पता लग रहा था, पिछले कई सालों से मुझे थोड़ी हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैं बार बार उनको बोलती थी कि मेरे कोई टेस्ट करवा लो भाई, किस वजह से हो रहा है इतना हेयर लॉस। कुछ भी नहीं, मैंने खुद कह कह के फिर विटामिन डी चेक करवाया, मेरा जैसे ब्लड लेवल वो जो रेड सेल्स जैसे चेक करवाए। जी, तो जी। तो मेरा मतलब इतना ज्यादा मेरे को एनीमिया था, मेरा वो 7 आई रिपोर्ट, और जो मेरा विटामिन डी है उसमें 34 आया। तो अब मैंने उसकी दवाइयां थोड़ी शुरू की, ये वो, एंड आई कैन सी द डिफरेंस। बट वो लोग खुद से कुछ बोलते ही नहीं है, तो मतलब हमें खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है, खुद ही बार बार उनको फोर्स करना पड़ता है कि नहीं अब आप ये करवा दो, ये लिख के दे दो, ये वाला टेस्ट लिख के दे दो। इफ दे नो व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अ सर्टेन थिंग दैट आई एम कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, देन दे शुड आस्क मी ना कि ओके ये टेस्ट करवा लो या ये कर लो। ना तो वो कहते हैं कि टेस्ट करवा लो, ना वो कोई ट्रीटमेंट में कोई वो करते हैं। तो मतलब खुद ही डॉक्टर बन के अपना इलाज खुद ही करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है आप जो बात कर रही हैं, और आज की डेट में खासकर यहाँ पर भी और बहुत सी जगह पे, यहाँ का अकेला क्यों, कि जो नॉर्मल बीमारियां हैं, डॉक्टर उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते आपको। हाँ, वेरी सीरियस है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए है, हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हार्ट उस स्टेज पे ना पहुंचे कि आपको हार्ट अटैक हो, वहां पर ना पहुंचे, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट नहीं देते, उसके लिए कोई दवाई नहीं करते ये। बस वही बात है ना, वही बात है। हाँ। तो अब मतलब हमें ऐसा क्या हम कर सकते हैं, या कोई ऐसी यहाँ पे हमारे अपने कोई डॉक्टर्स हों या कोई, मतलब क्या हमें करना चाहिए, कहाँ पे जाके हम अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? कोई ऐसे हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हों या जिनके पास हम जा सकें, या जो हमें अच्छे से गाइड कर सकें, लाइक व्हाट आर योर सजेशंस टू कीप योर हेल्थ इन चेक? उसके लिए एज देखो आई, जी, एक तो हम होम्योपैथ हैं, हाँ जी, और दूसरा है जो डाइटिशियंस हैं यहाँ पे, हाँ जी। जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, उनकी मदद लीजिए। हम्म, और दूसरा, आप जैसे पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, अपना जो है गूगल में सर्च सर्च मारिए क्या क्या ये सारी जो चीज़ें हैं। और मैं दूसरी ये कहूँगा कि
आयुर्वेदिक हो गई या होम्योपैथी जो है, ये ऐसी पद्धति है जो आपको बीमार ना होने के लिए बचाती है। आज की डेट में आप सब लोग समझ चुके हैं एक चीज तो, कि एग्जैक्टली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या फिर भी ये जो है, इनके पास तो प्रिवेंशन के लिए तो ट्राई नहीं है, कुछ भी करते ही नहीं है। वो प्रिवेंशन वाला जमाना निकल गया। वो तो खत्म है। हाँ, पहले होते थे प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होती थी सही तरह से। हम्म। आजकल प्रिवेंटिव जो है वो नहीं है, बस ठीक है अभी बीमार होते रहो होते रहो होते रहो। अभी कोविड के लिए कितना ज्यादा जो है ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है। अगर वही जो है, इंस्टेड ऑफ आप कोविड को पकड़ के, जैसे मैंने कहा डायमेंशिया, कोविड का नाम लेके नहीं, जो पेशेंट के सिम्टम है जो पहले आ रहे हैं, सिम्टोमेटोलॉजी अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। शुरुआत में उसको अगर नाक बहना शुरू हुआ है, खांसी आ रही है, तो आप उसको वो दवाई देके वहीं पर उसको रोक दो। इन्होंने तो यहाँ कर दिया कि नहीं, नॉर्मल जो है शेल्फ वाली है मेडिसिन वो नहीं लेनी है। आपको सिंपल है क्या, ये एक सिंपल जुकाम, बड़ा जुकाम हो गया ना ये। जैसे कि भाई पहले थोड़ा-सा आपके तो थोड़ा-सा भूलता है, वो भूल उसका ट्रीटमेंट नहीं करना कि क्यों भूल रहा है, किस तरह से है, उसको डिप्रेशन से भूल रहा है या ओवर एक्सर्शन है, उसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, उसके रिफ्लेक्सेस नहीं पूरी तरह से काम कर रहे। आप अगर उन चीज़ों को आप ध्यान करोगे तो ठीक हो जाएँगे। लेकिन उस पे हमने नहीं जाना। और सबसे ज़्यादा जो है, मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो चीज़, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी जब हमने डायबिटीज़ की बात की थी, कि जो खाना है, ये नॉर्मल खाना, अच्छी तरह से खाना, अच्छी तरह से चबाना, ये बहुत ज़रूरी है। वो यहीं पर मैं अभी आ गया याद, कि जो मैंने आपको बोल रहा था कि अमाइलेज जो है, या अगर आपको ये सारी तकलीफ है, देखिए खाना जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे जो ज़ुबान है या सलाइवरी ग्लैंड जो हैं, ये एक सलाइवरी जूस छोड़ते हैं, जिसे कि हम कहते हैं टाइलेज, डाइजेस्टिव डाइजेस्ट करने के लिए। एंजाइम्स, यस। हाँ, और वो जो है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है। अब जितने और जितना वो अंदर चला जाता है, आपके पेट में भी वो चलता रहता है। अब वो उसकी जो कह लो क्वालिटी जो है, वो आप कितना काम करेगी पेट में जाकर, क्योंकि अगर आपके पेट में ज़्यादा एसिड है, तो वो कम काम करेगा। इसलिए कहा गया कि आप जो खाना है अच्छी तरह से मुंह में ज़्यादातर चबाइए और एक तरह का खाने की कोशिश करिए। और उसके बाद में जो है, वो यही टाइलिज्म जो है, वो आपके पैंक्रियास से निकलती है, जब खाना आपके पेट को छोड़ रहा होता है कि 2.5-3 घंटे के बाद में। अब वो अगर बिगड़ गई, वही बिगड़ी है, तो क्योंकि जो अपना जिनको शुगर है, जिनको जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जिनकी इंसुलिन प्रॉपर नहीं आ रही, तो क्योंकि पैंक्रियाज में गड़बड़ आ चुकी हुई है, तो वो जो है वहां से जो एंजाइम है प्रॉपरली वो नहीं आ रहा। तो इन चीजों को ठीक रखने के लिए यही चीज है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जितना हो सके कच्चा, पका हुआ ठीक हो, कच्चा खाएं, और अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि आज की डेट में जो है ये बड़े स्प्रे करते हैं, या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कई तरह के या वैक्स वगैरह लगाते हैं, या कुछ और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। और खासकर यहाँ कनाडा में जो है, मैं ये कहूँगा कि आप इन दिनों में आपकी जो फार्मर मार्केट है, वहाँ से आपको अच्छे फ्रूट, अच्छी सब्जी मिलती है, या थोड़ा-सा गाँव की तरफ निकल जाओ, तो वहाँ पे जो शॉप्स लगी हुई हैं वहाँ, और नहीं तो अगर आपके पास बैकयार्ड है, तो उसमें बड़े यहाँ पे खासकर जो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, एक तो कद्दू जो है, या लौकी या स्क्वैश वगैरह जो है, ज़ुकीनी जो है, ये आप लगाइए अपने। टमाटर आप टमाटो इज द बेस्ट। लगा सकते हैं, बहुत होते हैं, हैं? यस। पुदीना है, ऐसी जो चीज़ें छोटी-छोटी, हरी मिर्चें, पेपर्स, बिल्कुल हरी मिर्चें, पेपर भी, तो आप ये लगा लीजिए। क्यूकम्बर्स। और अगर आपने साल में अगर ये आपने 2-3 महीने भी आपने ऑर्गेनिक सब्जियाँ खा ली, तो समझो कि आपका एक डी-क्लींजिंग हो जाएगा।
हम तो इतने टमाटर वगैरह और ये चीजें उगा लेते हैं और फिर मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ। टमाटरों को तो साबुत ही फ्रीज कर देती हूँ और घिया वगैरह को भी चॉप करके जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा तो नेक्स्ट सीजन तक ये निकल ही जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आई जैसे आई लास्ट हैव टाइम लाइक मैंने बताया था, जिन्होंने भी Yeah. डायबिटीज पेशेंट को अच्छी तरह से एक बार बैठ के पहले सैलड और हम्म, फिर फ्रूट्स और फिर उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत रोटी अलग तरह के जो है मल्टी ग्रेन्स वो खाएं और 4 से 5 घंटे का डिफरेंस जरूर रखें। बीच में पानी वानी पी लें, ग्रीन टी पी लें। ग्रीन टी भी जो है आपको पीनी है तो पुदीने की बना लीजिए, आप हल्दी वाली चाय बना लीजिए, आप उसमें या सिनामिन की चाय बनाओ इंस्टेड ऑफ जो ये कमर्शियल ग्रीन टी है उससे अवॉइड करिए। सो बात अभी आएगी, क्योंकि मैं होम्योपैथी जो है मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ और इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं और इसीलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो करते थे, लेकिन हाँ मुझे कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं उसकी प्रिस्क्राइब नहीं करता किसी को मेडिसिन, क्योंकि वही है कि रेसिपी प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो इतना भी होम्योपैथी में मैंने सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से सीखने की कोशिश की है और अच्छे रिजल्ट आए, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अच्छी तरह से इस पैथी को कर रहा हूँ और ऑनेस्टली पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। और होम्योपैथी एक ऐसी है जिससे कि बहुत बीमारियां जो है वो रिवर्सिबल गियर में चली जाती हैं, कि जो हम किताबें पढ़ते हैं कि ये बीमारी इरिवर्सिबल है, वो एलोपैथी के नजरिए से है, होम्योपैथी नजरिए से नहीं है। जो इवन एलोपैथी वाले देखिए, जो मेडिसिन 4 साल 10 साल चल के बाद खत्म हो जाती है, इसका मतलब है कि वो कभी भी ठीक नहीं थी। ये तो नई नई तरह की चीजें आती है, ये कोई वो थोड़ी है ये अभी नया सर्फ आ गया, नया रिन आ गया है बेचने वाली बातें हैं। ये वो गलत है। जिसकी बुनियाद जो है वो सैंड पे नहीं रॉक पे होगी, वही घर हमेशा टिका रह सकता है। ये होम्योपैथी जो है इट्स वेरी न्यू साइंस, इसको 200 साल ही हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे चल रही है इसके बराबर। पहली वाली स्लाइड रखिए प्लीज। हाँ, इससे क्या क्या जो है होम्योपैथी कहाँ कहाँ अच्छी तरह से आपको करती है। ये आपको जो है मेमोरी बैकअप, फॉरगेटफुलनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है होम्योपैथी में। ये ट्रॉमेटिक जो है ब्रेन इंजरीज, नई भी पुरानी भी, सबको ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत ही बता भी देता हूँ कि जैसे फॉरगेटफुलनेस के लिए एक एनाकार्डिया मेडिसिन है, जिसे कि मार्किंग नट भी कहा जाता है। ये आपको अभी तो नहीं आपको पता होगा, या इंडिया में जितने भी जो धोबी हैं वो मार्किंग नट से निशान लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। देखिए वो कभी कपड़े किसी के एक दूसरे यानी कि मिक्सअप नहीं हो पाते, कैसे निशान लगाते हैं, वो कभी निशान उतरता भी नहीं है। सो इसलिए उसे मार्किंग नट जो कहा गया, वहां से दवाई वो बनी हुई है एनाकार्डियम में। लेकिन वो कैसे देनी है हाइपोटेंसी में, लो में, वो डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने क्वालिफाई कर रहे हो। और ऐसे ही ट्रोमेटिक इंजरी जो है, खासकर ब्रेन इंजरी जो कि एकदम से एक्सीडेंटल है या आपके सिर के ऊपर कोई चीज लगी है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज आर्निका, और एक है नेट्रम सल्फ। कैसे देनी है ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप अगर होम्योपैथ के पास जाएं तो देखें भी क्या दे रहा है, किस तरह से है। ये डिप्रेशन के लिए, देखो डिप्रेशन भी कई तरह की होती है, अपने प्यारों से दूर होके भी होती है, तो उसके लिए जो है अगर ऐसी बात हुई है तो इग्निशिया मेडिसिन है। और अगर आपको किसी फेलियर की वजह से हुई है तो भी इग्निशिया ही है मेडिसिन। पल्साटिला है, एसिड फॉस है, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन है जो आपको डिप्रेशन से निकालती हैं। नेट्रम्योर है। हाँ, अब आ गया ये गुड स्लीप। आपकी स्लीप के लिए आप ये चीज आती है कि आपकी जो स्लीप है क्यों बिगड़ी है, ये आपका देखिए, अगर आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा है तो आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होनी आपको नींद बराबर नहीं आएगी। पहली तो बात ये है। दूसरा, आपको अगर आर्थराइटिस है,
आर्थराइटिस में पर्टिकुलरली रोमेटिक आर्थराइटिस है जिसमें कि हमेशा पेन रहती है, तो वो भी आपकी स्लीप को करेगी डिस्टर्ब। इन चीजों के लिए होम्योपैथी में जो है आपको अच्छी तरह से आपकी ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है उसमें। इट कैन रेगुलेट द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फैट होम्योपैथी में, जो आपकी जो फैट को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीजें जो है ये आपके इसमें होम्योपैथी मेडिसिन में आपको मिलेंगी। और एक जैसे आपने बात कर रही थी, मैं जनरली अपने सब पेशेंट हैं या कोई भी है, उनको एक चीज बोलता हूँ, एक ही मेडिसिन बहुत अच्छी है जिसे कि आफ्टर 40 हर एक को खा लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि आपको डाइट की तरह, जैसे आप अपना बादाम अखरोट खाते हो, मेडिसिन है काली फास, उसकी पोटेंसी है 6x। जो काली फास है ये पोटेशियम फास्फेट्स है, और पोटेशियम जो है आप सबको पता है कि अपने शरीर के लिए कितना जरूरी है। इसलिए जो फलों में आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो ये अगर आप, जब मैं स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ कि भाई ये अगर आप सुबह 4-5 गोलियां खा लो, शाम को खा लो, तो आपका सारा दिन भी बड़ा अच्छा रहेगा। How do we spell Coliphos, sir? कालीफास 6x। So it's a CAUL or like हाँ how do we spell it? स्पेलिंग बताओ। KALI, KALI. Okay, काली। Kali. आगे फास्फोरस, फास्फोरिका बन जाती Okay, है। 6x। 6x. Thank you, sir. ये जो ऑफिस से आ रहा है बंदा, ऑफिस से निकलने से पहले 4-5 गोलियां खा ले, तो घर आते आते उसका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। Oh. और बीवी अगर हाउस होल्ड है, वो थकी है, तो वो उसके आने से 5 बजे आता है तो 4 बजे तक ये खा ले, तो उसका ही मूड ठीक होगा। तो वो फटाफट जो उसके आते ही उसको चाय वाय पिलाएगी और कहे, जैसे चाय पिए वो कहेगा चल बाहर चले, डेट पे चलते हैं। तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और इससे आपकी याददाश्त भी ठीक रहती है, क्योंकि इससे एक चीज और बताऊं, अगर आप इसको 40 के बाद में खाना शुरू कर दो, 1 साल तक ले लो लगातार, कोई तकलीफ नहीं, आपके झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, Wow. बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, ये नहीं आप, लेकिन आपको आप यू कैन फाइट विद द एजिंग। और अगर इसको खाते रहो तो बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके, खासकर झुर्रियों से आप बचे रहोगे, आपके जो चेहरे पे झुर्रियां हैं। और याददाश्त भी आपकी बड़ी रहेगी, आपको डायमेंशिया छू तक नहीं सकेगा। और जिनको छू गया है वो भी इसको खाएं, क्योंकि इसने इट्स अ मल्टीपल, जो कहते हैं ऑलराउंडर है। आपका थायराइड भी इससे ठीक रहता है। अब जिनके थायराइड में गड़बड़ होती है उनके भी बाल झड़ते हैं। Yeah, I have it too. या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, डायबिटीज को कंट्रोल रखती है, क्योंकि डायबिटीज जो है कुछ तो ऑर्गेनिक है, लेकिन इसके भी कई कारण होते हैं। बहुत से लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी होती है, सो इट विल कंट्रोल दैट आल्सो। तो ये एक यूनिवर्सल, जिस तरह से आप यहाँ पर मोस्टली जो है टैनॉल खाते रहते हैं ना, कुछ भी हो चलो टैनॉल खा लो, सो इसको भी अगर आप दें, इवन छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों का एग्जाम के दिन है, उनको सुबह भूल जाते हैं, तो इंडिया में खासकर ये कालीफास जो मेडिसिन है, एग्जाम के दिनों में तो इतनी होम बिकती है कि खत्म हो जाती है लोग अपने शेल्फ से। जी आगे चलिएगा। सो ये कुछ दवाइयों के नाम लिखे, जैसे कलकेरिया कार्ब है। दिस मेडिसिन हेल्प इन वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरीज, पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग आवर्स। देखो कई तरह के टाइमिंग के ऊपर भी होम्योपैथी मेडिसिन चलती है कि कौन सी कुछ टाइम पे। दीज पीपल हैव इररेसिस्टिबल हैबिट टू कर्स एंड स्वीयर। कई बार तो मैं कसम खाना, मैं करना, सौ माता दी, जिनको ये ज्यादा है उनके लिए भी ये एक रेमेडी जो है उसकी आदत को ठीक करेगी। लाइकोपोडियम, दिस मेडिसिन आल्सो हेल्प हु वाइल राइटिंग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्ड आगे पीछे लिखना है, या उनके स्पेलिंग जिनके ज्यादा मिस्टेक होती है, ये उनके लिए है खासकर। एंड दे फील
नहीं जाता। अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स। हाँ, बच्चे जो है या किसी को भी प्रेजेंटेशन देने में वॉश हिचकिचाहट कर लो होती है। बेटे, थोड़ा कपड़े भी चेंज कर लो ना, और मैले लग रहे हैं। स्टेज फियर, कपड़े अगर कोई चेंज नहीं करता है, मैले पहनता है, तो उसके लिए सल्फर मेडिसिन है, वो अपना पूरा ध्यान रखेगा, कपड़े कभी मैले नहीं पहनेगा। हम्म, आगे है जैसे प्री मेच्योर जो ओल्ड एज के लिए अगेरिकस रेमेडी है। अगेरिकस अगर आप नहीं तो इसके लिए जो अगेरिकस मेडिसिन हमारी वो बनती है फंगस। फंगस क्या है? जो आप यहाँ पे जो खुम्बे हैं वो बहुत बढ़िया है, उसका आप सूप पीजिए। और उसके बाद अर्जेंटो नाइट्री का मेडिसिन, ये चांदी से बनती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो चांदी का कहते कड़ा पहन लो या चांदी की पायजेब पहन लो, जिससे कि आपकी याददाश्त जो है वो खूब अच्छी बनी रहेगी। खासकर लेडीज में इसलिए वो कहते बिछुए पहने होते हैं पैर में, तो क्योंकि उनको तो बहुत कुछ याद रखना है। खासकर जो लेडीज हैं उनका तो प्री ऑक्यूपेशन बहुत रहती है। कभी बच्चे को भी बना के देना, उसके हस्बैंड की शर्ट प्रेस करनी है। लेकेनियम ऐसी मेडिसिन है जो कि आपने देखा होगा कई बार कई लोग इतने भुलक्कड़ हो जाते हैं कि सामान खरीद लिया, पैसे भी दे दिए और शेल्फ से उठाना भूल जाते हैं। दे मेक परचेज एंड फॉरगेट टू टेक द आर्टिकल विद देम। और उसके बाद में ब्रेटा कार्ब मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन खासकर ओल्ड एज के लिए या बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जिनकी याददाश्त नहीं ठीक आ रही, खासकर जो आजकल आप देखते हो बच्चे जिनको तरह-तरह की बीमारियां जो आज की डेट में ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। और ये बूढ़ों में तो बहुत ही अच्छा काम करती है ये खासकर ये एसिड सेलेनियम मेडिसिन है। इस तरह से जो ग्लोनाइन एक मेडिसिन है जो कि आपकी याददाश्त को, ये थोड़ा ऊपर करेंगे अनु जी। अब जैसे अनु जी थोड़ा सा ऊपर करिए I स्लाइड को। don't think it will allow me. I can try. हम्म। कोई बात नहीं। अनु वो स्क्रॉल करने के लिए कह रहे हैं, स्क्रॉल डाउन। हाँ बस बस बस, बस। ये जो बात मैं कर रहा था कि अपनी गली भूल जाना, लोकेशन भूल जाना, या कई बार होता है कहीं आप गए हो, सुबह उठे एकदम से पता नहीं कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं या मैं कहां पे सोया। तो अगर इस तरह की तकलीफ हो तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मोस्टली ये कंडीशन आती है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही जो ग्लूकोमा है ये भी बहुत लोगों को होता है और उसके लिए भी बड़ा अच्छा ये काम करती है। ग्लूकोमा का भी होम्योपैथी में बड़े अच्छे अच्छे इलाज हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वाली जो है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन, जैसे आपको मतलब कोई सुबह भूलता है, कोई दोपहर को भूलता है, कोई शाम को भूलता है, कोई रात को भूलता है या कोई पर्टिकुलर नाम भूलता है, उन सब के लिए अलग अलग तरह से है। ये कैलेडियम मेडिसिन जो है ये एब्सेंट माइंडेड पीपल होते हैं, मोस्टली उनके लिए
बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ये जिनको बहुत ज्यादा तंबाकू पीने की आदत है, तंबाकू, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तंबाकू छोड़ना है, तो ये कैलेडियम मेडिसिन आल्सो हेल्प टू दोज पीपल हु वांट टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग हैबिट या तंबाकू, या जिनको मक्खियां मच्छर बहुत जिनके ऊपर जल्दी आते हैं, जिनका पसीना ऐसा आता है कि यानी तो बहुत मीठा पसीना, तो उनको भी अगर ये लें तो उनको मच्छर काटने बंद कर देंगे। ये आइडियो मेडिसिन जो है फॉरगेट, जिनका जो डिपेंड करता है कि आपकी अगर थायराइड में आपको गड़बड़ हो गई है, थायराइड की वजह से है, तो दिस विल हेल्प इन दैट केस। किसका? तो ये एक लिस्ट है जो होम्योपैथी मेडिसिन तो इसके लिए हेल्प कर सकती हैं। सो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को है तो आप अपने आसपास किसी भी होम्योपैथ को कंसल्ट करिए, तो और अपनी बीमारी को बचाने की कोशिश करिए। सर आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं नॉर्थ यॉर्क में हूँ जी, यॉर्क यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में, कील एंड फिंच मेजर इंटरसेक्शन है। कील एंड, आप अपना एड्रेस बताएंगे ताकि मैं कभी आके कंसल्ट कर सकूं आपको? लिख लीजिए। हाँ जी 35 जी। किलामार्श ड्राइव, हाउ डू यू स्पेल दैट? KILLA MARSH, किलामार्श ड्राइव, M3J M3J 1J4। 1J4। थैंक यू सर। और No- आपका no नाम? problem. आपका, मैंने एक्चुअली शुरू से क्लास मिस कर दी थोड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिमा शर्मा। प्रतिमा शर्मा। ठीक जी, शर्मा जी। गुरुदत्त जी इनका नाम, गुरुदत्त वैद। प्रतिमा जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और मैंने तो अभी आपने बताया कि आपने लास्ट क्लास डायबिटीज पे की थी, वो भी मिस कर दी, तो मैं तो आई होप कि आप आपको दोबारा करो कभी डायबिटीज पे। आपको कर लेंगे उसके ऊपर भी। मैसेज देती वो हूँ। बीच बीच में ऐसे बताते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भी क्वेश्चन आंसर अगर आप करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरली होता है हाँ कि जी। क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने के लिए तो नहीं बैठे, हाँ जी, आप हाँ लोगों जी। को हेल्प करने के लिए है। नहीं नहीं, मुझे तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, तो बस उस ट्रस्ट को बनाए रखिए और हाँ जी, अच्छे जगह ढूंढिए जो आपको तसल्ली से ट्रीटमेंट दे पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई एम इन ब्रैम्पटन बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गो देयर एंड सी यू। ठीक है जी। हाँ जी। और मेरा आपसे जो है, आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। हाँ जी, मेरे को फोन नंबर भी मैं वही कहने लगी थी कि अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी ना आने के लिए। 647 हाँ जी 292 292 1576। 1576। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 24 hour 7 days you can call वाह, me anytime। ओके जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैं आऊंगी अभी। अभी हमारा टाइम हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू गुरुदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से डिमेंशिया के बारे में समझाया। हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन वहीं से शुरू होता है जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। सो थैंक यू फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। एंड बाकी क्वेश्चंस मेरे थे 3-4, बट वो फिर कभी पूछेंगे क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है। नेक्स्ट सेशन में कभी पूछ लेना तभी। Yeah, please. और हमारी एक दूसरी मीटिंग है, so we have participants waiting as well. But वो amazing बहुत देर से session, कर गुरुदत्त रहे जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ ना, प्लीज उसमें आप लोग पूछ सकते हैं डॉक्टर गुरु जी से और मीता जी से, कोई भी क्वेश्चन है। जी जी जरूर।
प्रतिमा जी मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में, मेरे ख्याल मैंने आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank everyone. you. Thank you so much, Gurudat ji. इंसान का Amazing presentation. इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।